you all can post the queries. Whatever queries you people have, you can post the queries in the chat box. And after this discussion, we will take the queries one by one, and we'll see to it that each and everybody's query has been answered. You all are muted right now, just to maintain the discipline of the session. And we will start the session within 3 or 4 minutes. So please bear with us. Thank you. So it's 12:05 now. Let me formally start the session. A very good afternoon to all. On behalf of Department of Management Studies, Anand Engineering College Technical Campus, I, Mohammad Arif, Associate Dean Student Welfare, welcomes you all. Today our topic of discussion will be opportunities and challenges in managing individual finance after COVID-19 crisis. And our guest speaker today is Mr. Parag Gautam. So now I would like to request Atul Narang sir, Dean Student Welfare, Anand Engineering College Technical Campus, to welcome and introduce Mr. Parag Gautam to the audience. Sir, you are muted. You have to unmute first and then you can hear. Thank you so much, my fellow colleague, Mohammad Arif sir. I feel privileged to address our honorable speaker for today's session, Mr. Parag Gautam. He started his career as a lecturer in the area of accounting and finance. He has delivered many lectures in Dalbagh Education Institute and in IMT Ghaziabad. He has delivered various sessions in ICFAI and Institute of Company Secretary, and also to other reputed institutes across the nation. Since 2012, he has been associated with Security Exchange Board of India, SEBI, as a resource person. He has conducted more than 250 workshops and seminars across the nation.
He is also a resource person for National Center for Financial Education. It is a joint initiative of SEBI, RBI, and IRDA, that is Insurance Regulatory Development Authority of India, and also Pension Fund Regulatory Development Authority of India. He has recently been inducted as a resource person for Indian Institute of Corporate Affairs also. He has co-authored books on cost accounting, financial management, and cost control, and also in corporate accounts. He has written several papers and articles which has been published in various journals, which are also listed in Scopus. He is a dynamic personality. Parag sir, let me tell you that students love you a lot. I will request our head of the department, Dr. Ravikant Pathak sir, to grace the occasion. Thank you. Ravi sir. Ravi sir, now you can Hello. unmute. Hello, am I audible to all? Yes, yes, sir. Okay, thank you, Atul sir. Hello. So you are audible. Please continue. Okay. Very good afternoon to all distinguished faculty members. Today's webinar resource person Sri Parag Gautam ji, all participants and dear students from Sharda Group as well as from other colleges. It gives me a great pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of Department of Management Studies, Anand Engineering College, Agra. As you know, you all are aware about the current situation of COVID-19. We have to take care of our health and household. In this situation, everyone needs to do proper financial management. That's why today's topic we have undertook is opportunities and challenges in managing individual finances after COVID-19 crisis. Dear all, this corona pandemic has not given much time to everyone so that we prepare ourselves financially for unforeseen consequences what we are facing. Also, we cannot predict how long this situation will prevail, but yes, by this experience, we can prepare ourselves for further such situations in future. That's why today resource person Parag Gautam ji will throw light for individual finance management during COVID and after that to be sustainable. I hope this webinar will be helpful to every participant to prepare themselves for proper financial management and household budgeting. Am I audible to all? Yes, yes, sir. Sir, you are muted. You have to unmute yourself. Am I audible now? Yes, yes. No. Okay. So before giving mic to the Parag Gautam sir, I would like to convey some of the points, my points, which I think to add on in this workshop, in this webinar, what we have scheduled today. So I would like to convey some of the points with reference to one article I read in Economic Times. They mentioned 9 practical steps to prepare for the financial crisis due to coronavirus. These are as follows. Although Parag sir will tell you all the aspects, but I want to mug up these points
quickly. The first important aspect what they have discussed about what we should do during these corona crisis. First, to keep money handy and spend very carefully and conserve the bank balance. Okay. This is not the time to spend anywhere. We have to keep our money handy and be careful about that. Second important point they mentioned, remain socially and mentally supported. Although we are isolated in our home, but we should be in communication with our colleagues, in communication with our employees, in communication with socially to everyone. That is important to do. Third point they mentioned, do not borrow heavy amount from the friends and relatives in this scenario. Avoid using credit cards. We are having lots of people are nowadays having credit card, but there is uncertainty about the future earnings. There may be the problems regarding the jobs and all that. So don't spend heavy from through your credit card. Fourth point I will mention, do not take loan against property. If problem of the liquidity, only these are the points suggested by the Economic Times article. A problem of the liquidity, only a few amount of gold can be used to increase liquidity by selling it to some extent in emergency only. Fifth point they said, use short-term investment funds for liquidity. Don't disturb your long-term funds. Only if you are going to use the short-term investment fund. Sixth point they mentioned, do not invest in any cheap property and shares. You are saying that share market is down. Most of the brokers are saying this is the best time to purchase the share. So don't spend your money this time to purchase the share and property, as there are the traps and tricks played by the brokers during the crisis. कि आप सस्ते के चक्कर में आप अपना पैटी में लगा दें जो आगे प्रॉब्लम हो. Keep your eyes and ear open to new opportunities to work and do something additional. Explore yourself what new things you can do further. 8th point, try to solve problems, whatever problems you are facing financially, socially, and whatever. Save resources, either electricity, water, all these save resources and enhance efficiency. And the last point I would like to mention, plan wisely after COVID employment and investment, as economy will take time to revive, and prepare yourself for the further crisis. For that only Parag Gautam ji will throw light on that. So finally, I am thankful to Mr. Atul Narang sir for coordinating this webinar successfully. All the faculty members of my department for their kind support. Also very much thankful to Arif sir for all technical support to organize this seminar. Once again, welcome to all participants. Thank you so much. Now I will hand over this to Parag Gautam ji. Welcome sir. Now you can continue sir. A very good afternoon to every participant. Thank you very much Ravikant sir. Thank you very much welcome sir. Atul sir. Thank you very much Mohammad Arif sir for giving me an opportunity to speak. My association with Anand Engineering College has been a very old one, actually speaking, since I joined SEBI as a resource person. If I'm not wrong, Atul sir, the first workshop we did with Anand Engineering College was somewhere in 2012. So, anyways, times change, and before I start with the formal session, let's keep things very simple. मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करने आया हूँ. मैं आपसे ये सब बातें नहीं करने आया हूँ कि सेंसेक्स ऊपर कैसे जाएगा, कैसे नीचे आएगा, निफ्टी कैसे ऊपर जाएगा, निफ्टी कैसे नीचे जाएगा. बिकॉज इस वक्त जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई है ब्रेड एंड बटर की लड़ाई.
और एक पुराना मैंने कहीं पता नहीं पिक्चर में देखा था या सुना था, जो जिंदा वो जीता, जो मुर्दा वो हारा। कोविड-19 ने हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रखा है, वो चैलेंज सबसे बड़ा जिंदा रहने का। अगर हम जिंदा रह गए तो हम इस जंग को जीत जाएंगे, और हम अगर मुर्दा हो गए तो हम इस जंग को हार जाएंगे। बट definitely, when we are fighting for the life, when we are fighting from this whole pandemic, we need to have money in our pocket also. And today we are going to talk about basic things about how to manage the finances in the post-COVID area, and what lessons we can learn from this COVID-19. So we'll hover around it and we'll discuss the things. Arif sir, if at all there is any miscommunication, you please let me know on call, right? It's very smooth, sir. No miscommunication. So as the topic has already been introduced, that we are going to talk about management of personal finances post COVID-19. The very first thing we should understand the difference between these two words. And these two very important words are coronavirus and COVID-19. Many of us are unaware. What is the basic difference between coronavirus and COVID-19? I'm not a man from science field or technical field to talk much about that. As a layman, what I have gathered the information is, coronavirus is a kind of common virus that causes an infection in your nose, sinuses, or upper throat, and what we generally call as that common cold. But whereas when we talk about COVID-19, WHO has identified SARS-CoV-2 as a new type of coronavirus. And this new type of coronavirus can trigger a respiratory tract infection. And that respiratory tract infection can be an upper respiratory tract infection or a lower respiratory tract infection, which makes it more dangerous. Because what medical friends have been telling me is that the moment it enters your respiratory tract, it converts into a pneumonia sort of a thing, and which puts your life at great danger. So we should be cautious about this COVID-19. We have been facing coronavirus for many years, I think since we are born, but we are facing Corona-19 for the first time. Another set of words which we should know the distinction between is epidemic and pandemic. Now, I was going through, see, I never thought about that one day I'm going to talk about the differences between these two words or the similarities between these two words. Epidemic, pandemic, हम generally बात करते रहते थे common sense में कि epidemic होता है, pandemic साथ, तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं simultaneously epidemic की जगह pandemic यूज कर लिया, pandemic की जगह epidemic यूज कर लिया. तो ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं एकदम देखूं कि इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है. What is the difference between epidemic and pandemic? तो मेरे को एक अंतर समझ में आया कि जब एपिडेमिक को पासपोर्ट मिल जाता है तो वो पेंडेमिक बन जाता है. तो बेसिकली एपिडेमिक और पेंडेमिक के बीच का डिफरेंस जो है वो इस लेटर पी का है. व्हेन पासपोर्ट it becomes a pandemic. Once a disease is confined to the geographical boundaries, it is epidemic. But once it crosses the boundary, it becomes a pandemic. So, and the moment it becomes a pandemic, it becomes a global issue. And once it becomes a global issue, so it is not only an health global issue, but it is also a economic global issue.
and which makes, see, African countries last time had Ebola. The Ebola confined itself to the African countries. We were not bothered about it. Swine flu was confined to very few countries. We were not bothered about it. But this has taken a global phase and it has spread to majority of the countries. That makes it more dangerous. And not only dangerous from the point of view of health hazards, but also from the point of view of monetary hazard, economic hazards. That is the biggest drawback of a globalized economy. See, nothing comes without demerits. If a thing has certain merits, it will definitely have few demerits. And that is one of the demerits of globalization. And which is, but you don't face this demerit every year. This demerit has faced 2008 में फेस किया था, उसके पहले 2003 में फेस किया था, और ऐसा ये कोरोना वायरस जैसा तो अब हमने लगभग 100 साल बाद फेस किया है. Somebody was telling me, I'm not quoting it, कि हर 100 साल बाद ऐसा होता है कि अभी 2000 में ऐसा, 2020 में ऐसा हुआ है, 1920 में वो प्लेग फैला था, 1800 में ये हुआ था, 17 में. Statisticians, they come into play and they start telling you how it happens. That is an area of workout, not my topic. Anyway, so obviously the moment it became pandemic, it not only brought health challenges for us, but it brought economic challenges in front of us. And when we are talking about economic challenges, so this coronavirus has concentrated around these three words. And what are these three words? LOC. Now, I'm not talking about line of control or line of actual control or something like that. This COVID-19 has put three things in front of us. L stands for lessons, O stands for opportunities, and C stands for challenges. So COVID-19 has given us three things. It has taught us lessons, it has given us opportunities, and it has posed several challenges in front of us. And the biggest challenge, एक बहुत पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया. मैंने जो इस कोविड-19 से जो पहला सार सीखा वो यही था कि सबसे पहले तो आपको स्वस्थ रहना जरूरी है. आज की नई बात नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ, हम सब सुनते आ रहे हैं. कब से कहा जाता है पहला सुख निरोगी और दूसरा सुख घर में माया. भाई साहब, बैंक में पैसा होना चाहिए. पहले हम सिखाते थे, अतुल सर अगर आपको ध्यान हो, कि यू शुड हैव एटलीस्ट 3 months ऑफ योर रेगुलर इनकम इनटू सेविंग्स अकाउंट. भाई साहब, एटलीस्ट यू शुड हैव 6 months ऑफ योर रेगुलर इनकम इनटू योर सेविंग्स अकाउंट. आई एम टेलिंग यू कि थिंग्स हैव चेंज्ड. माय डियर फ्रेंड्स, थिंग्स हैव चेंज्ड. हम बात करते थे बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ. हम बात करते थे BC AD की. अब बातें होंगी प्री कोविड और पोस्ट कोविड. The lifestyles will change, business styles will change, everything will change. But we have to concentrate on these two basic things. पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में. ना, अब घर में माया कैसे होगी, निरोगी काया कैसे होगी? यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा सेविंग्स के, यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स के. सबसे पहले बात करते हैं निरोगी काया. सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट. सेविंग्स इन व्हाट? Savings of your time, and investing it into what? Investing it into your health. Majority of the participants who are listening to me today
are youngsters around 22 years of age, 23 years of age, 21 years of age. Majority of the participants. My dear friends, take out time, save time, and invest it into your health. How to invest it into your health? Give at least 45, at least. I'm not saying maximum 45 minutes, at least 45 minutes to your health. Go for physical workouts, go for jogging, go for cycling. Do at least 1 hour, 45 to 1 hour of exercise every day. I read somewhere 5 days a week you should go for exercise, 6 days a week. So one doctor responded to it and said, does your heart take rest? क्या आपका दिल ये कहता है कि I'll beat for 6 days and 7 days I'll abstain myself? नहीं कहता ना. तो आप भी 7 दिन एक्सरसाइज करिए, 7 दिन के लिए टाइम बचाइए, उस टाइम को आप इन्वेस्ट करिए काय में? अपनी हेल्थ. Coming over to the other point, what we are going to discuss today, savings versus investment in terms of Maya, in terms of Ghar Mein Ho Maya. India, basically, our country is a country of savers. Why I'm saying India is a country of savers, there's a reason behind it. Because we generally don't know the difference between these two words. Majority of the times in every workshop when I raise this question, what is the difference between savings and investment? I get answers, and every person has got its own way of answering it. Somebody comes that saving is for short term, investment is for long term. Somebody comes with an answer that savings are at home, investments are in bank. Somebody comes with an answer, savings don't generate returns, investments do generate returns. But actually speaking, this is not the difference between savings and investment. And the day we Indians come to know about the basic difference between savings and investment, we'll convert ourselves from the country of savers to the country of investors. And the first primary thing, we should know the difference between these two words. And the basic difference between these two words is, which leads to the difference in these two words, is inflation. How come inflation is related to difference between these two words? देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैंने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 साल के लिए 1 लाख रुपया छोड़. सेविंग्स बैंक अकाउंट में आजकल की डेट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3%, 4%, 3.5%. फॉर एग्जाम्पल 3%, 3.5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. जब आपने 1 साल बाद अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट को देखा, अगर मैं फॉर द मोमेंट प्रिज्यूम कर लूं कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो मेरे खाते में पड़े थे 1,03,000. और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि मैंने 3,000 रुपए कमा लिए, मैंने 3% पैसा कमा. हमारे देश में इन्फ्लेशन की जो रेट है वो ऑन एन एवरेज रहती है 6 to 7%. मैंने कमाए कितने? 3%. महंगाई कितनी बढ़ी? 7%. तो एक्चुअली स्पीकिंग मैंने 3% कमाए नहीं, मैंने 4% गंवा दी. Instead of earning 3%, I have lost 4%. Why? कि महंगाई बढ़ गई 7%, मैंने कमाए 3%, 7 - 3 कितने का घाटा हो गया मुझे? 4%. अब ये तो 4% का घाटा मुझे तब हुआ जब मैंने ये पैसा अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में छोड़ा. अगर यही पैसा मैंने अपने घर की तिजोरी में, घर के डिब्बे में छोड़ दिया होता,
तो मुझे पूरा नुकसान होता 7%. And that makes the difference between savings and investment. अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं, मेरी बात को आप गौर से सुनिए, अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां पर आपका रेट ऑफ रिटर्न आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज्यादा है, that will be termed as investment. Otherwise, rest everything will be termed as savings. And this inflation has एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है. 2001-2002 में चीनी 16 रुपए किलो थी, 9-10 में 40 रुपए हो गई. कुकिंग ऑयल 5 लीटर 290 का था, 500 का आ गया. 1 किलो चावल 14 रुपए का था, 35 रुपए का हो गया. 1 लीटर पेट्रोल 33 रुपए का था, 40. तो ये जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो काय की वजह से बढ़ते हैं? इन्फ्लेशन की वजह से. एक बहुत सिंपल सा इन्फ्लेशन कैलकुलेटर की अगर हम बात करें, which can just throw a light on कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली हमारी बेसिक नेसेसिटीज की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, इसके एक जहन में हमारे. इसका एक बहुत छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 1987 में जब मैंने पहली बार पेट्रोल भरवाया था तो पेट्रोल का दाम था 6 रुपए 70 पैसे लीटर. और मैंने पेट्रोल शायद 80 रुपए लीटर भी भरवाया है. और शायद 1987 में तब मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी कि एक दिन जब मैं पेट्रोल भरवाऊंगा तो वो पेट्रोल मुझे 80 रुपए लीटर भरवाना पड़ेगा. तो एक आप, चूंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ बैठे हैं, जरा इस बात को एक बार जरा गौर फरमाइएगा. आरिफ सर, स्क्रीन इज विजिबल? Sir, you have to reshare that screen, that inflation calculator. Okay, sir. Now we are with. Okay, yes. Is it there, sir? Yes, it's coming. Yes, now it is there. देखिए, ये मैंने हालांकि आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है. और देखिए 2010, आज हम वो हमारा कंपैरिजन था 2001-2 से लेके 2010 तक था. एक कंपैरिजन लेते हैं 2010 से 2020 तक. आज की डेट में आटा हम 22 रुपए लाते हैं. नॉर्मल आटे की बात कर रहे हैं, कोई प्रीमियर आटे की बात नहीं कर रहे. 2010 में यही आटा में 12 रुपए किलो मिलता था. आज की डेट में एक कुकिंग ऑयल 1 लीटर 105 रुपए 100 रुपए लीटर हम लाते हैं. यही कुकिंग ऑयल 2010 में 50 रुपए लीटर मिलता था. आज हम चावल 90 रुपए लीटर जाते हैं. यही चावल हमको 45 रुपए किलो मिलता था. पेट्रोल आज हम 74-75 रुपीज भरवा रहे हैं, ये 48 रुपीज मिलता था. डीजल 68 रुपीज भरवा रहे हैं, ये 38 रुपीज मिलता था. और अगर इनका इन्फ्लेशन हम देखें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ये रेट. आटा किस भाव बढ़ा? 6%. कुकिंग ऑयल क्या भाव बढ़ा? 8%. राइस क्या भाव बढ़ा? 7%. पेट्रोल क्या भाव बढ़ा? 4%. डीजल क्या भाव बढ़ा? 6%. अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन के आसपास ही होगा, 6 to 7% के आसपास. तो आप ये मत सोचिए कि कोई चीज सस्ती हुई, कोई चीज महंगी हुई. जो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ लाइफ है वो बॉस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अनुसार ही बढ़ेगी. ये फिगर्स मेरे नहीं है, बाजार के फिगर्स हैं. और मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया है. आटा, तेल, चावल, पेट्रोल, डीजल, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब यूज कर रहे हैं. और अगर मैं इसी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को 2040 में ले जाऊं तो कैन यू इमेजिन
Atta will be 74 rupees per liter, 73.94 rupees per liter. Cooking oil will be 463 rupees per liter. Rice will be 360 rupees per liter. Petrol will be 175 point. Thanks to hybrid vehicles, thanks to EVs. ये बढ़ नहीं रहा है, वरना भी ये बहुत बढ़िया, जो 4% आप देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा शायद ग्रोथ इसी में हुई होगी। सप्लाई बढ़ गया, अभी तो नेगेटिव में चला गया था क्रूड अभी कोविड-19 के दौरान, वरना यू कैन इमेजिन कि 6 रुपए 70 पैसे वाला जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया और 80 रुपए वाला एग्जाम्पल दिया, अगर उस रेट पे बढ़ा होता तो ये कहां पे पहुंचा होता। देन 217 रुपए डीजल। This is what inflation does to our savings. This is what inflation does to our basic lifestyle. So we need to be very cautious about अब साफ करें क्या। समस्या ये है ना, हमने बता तो दिया कि 2001 में इतना था, 2010 में इतना था, 2020 में इतना होगा और 2040 में बॉस इतना हो जाएगा। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि बॉस करें क्या हम, वो तो जाएगा, वो तो ठीक है। वी शुड हैव अ प्लान, वी शुड हैव अ प्लान कि हम इन सब चीजों को हम कैसे फेस करें। एक जनरल क्वेश्चन, और जब भी हम सेमिनार्स में पूछते हैं तो अभी स्क्रीन इज विजिबल सर? Yes, yes, sir. Which is a bigger problem? Dying young or dying too old? मरना परेशानी है, ये बात तय है, कोई नहीं मरना चाहता। अगर 105 साल के आदमी से भी आप पूछेंगे कि आप मरना चाहते हो तो मना कर दे। तो जनरली जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज अ बिगर प्रॉब्लम, डाइंग यंग और डाइंग टू ओल्ड, तो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ के बीच में से एक सवाल आता है, उत्तर आता है कि सर डाइंग टू ओल्ड इज अ बिगर प्रॉब्लम। और जब हम उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डाइंग टू ओल्ड इज अ बिगर प्रॉब्लम, एंड आई टेल यू दिस इज अ वेरी सीरियस कंसिडरेशन। The answer, when you get this kind of an answer which I'm going to utter, which comes from the youth, it poses a very serious problem. So when I ask them why dying too old is a bigger problem, bole, once we become too old, sir, we are financially dependent, we are physically dependent. Now this is not a very good answer from the youth of the country. हमारा बच्चा आज की डेट में अपने करियर को बनाने की बजाय बुढ़ापे के बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है वो? क्योंकि हमारे समाज की परिस्थिति ऐसी, वो बच्चा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर हम उनसे कहते हैं कि बोले सर अभी तो आपने बताया कि इतना पैसा चाहिए होगा, आटा इतना भाव हो जाएगा, तेल इतना भाव हो जाएगा, और ये तो आप बता रहे हो 2040 में तो हम 40 साल के ही होंगे, जब हम बुढ़े होंगे तो पता नहीं कितना हो जाएगा। तो हम उनसे कहते हैं अच्छा एक एक्सरसाइज करते हैं, है ना, एक रिटायरमेंट नीड बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, और अगर उतने पैसे हम तुम्हारे इकट्ठे करवा दें तो फिर तुम देर से मरना पसंद करोगे कि जल्दी मरना पसंद करोगे? बोले सर फिर तो देर से मरना पसंद करेंगे। तो मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसी भावना हो कि आप जल्दी मरना चाहते हो तो उसे निकाल दीजिए। आज के सेशन के बाद मैं आपके पास इतने सारे पैसे इकट्ठे करा दूंगा कि आपको अपना लड़का तो क्या, आपको पड़ोसी का लड़का भी पापा कहेगा। Okay, so let's go ahead with a very simple long-term planning, which is a retirement need calculator. We'll go for obviously financial planning, and it is the process of meeting one's life goals through the proper management of personal finances. ये सब theoretical बातें हैं, let's plan it physically.
सर इज दिस रिटायरमेंट कैलकुलेटर विजिबल? नो नो सर, नहीं है? ओके, नहीं सर. एक सेकंड कर. So every time you have to share a new screen. Yes, yes. मनी इज नॉट एन इजी टास्क ना, तो ये भी आसानी से कह रहा है मैं आपको सीखने नहीं दूंगा. You have to open that window first and then you can share. हाँ, but I'm not able to go back to the window. Press escape. हाँ, I'm trying that only. Is it visible now, sir? Yes, now it's coming. Yes, now it's चलिए, visible. आपको थोड़ा देखिए, पैसा आसानी का काम नहीं होता ना, मेहनत का काम होता है, तो ये भी आसानी से मिलने वाला था नहीं. Obviously. Anyway. चलिए, अगर हम if we are catering to the young generation, तो अगर हम मान लें कि आप लोग सब आज जो मेजोरिटी हो, जो पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें अराउंड 9500 लोग, उसमें से मेजोरिटी की एज जो है वो 20-22 साल है. ठीक है, तो आरिफ सर क्या होगी एवरेज एज इन लोगों की? 21 साल, 22 साल? Yes, yes. चलिए 22 साल मान लेते हैं. अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप लोग अगर आज 20,000 रुपया खर्च करते हो, ठीक, एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिटायरमेंट एज. रिटायरमेंट एज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका एक रीजन है कि जैसे जैसे आपके कंट्री के अंदर एवरेज एज बढ़ेगा, वैसे वैसे रिटायरमेंट एज बढ़ता चला जाए. Are you getting it? तो आज की डेट में कहीं लोग पहले 58 पे भी होते थे, 55 पे भी होते थे, आज की डेट में 60 हो गया, 62 हो गया, 65 हो गया. तो जब तक आप लोग रिटायरमेंट एज पे पहुंचोगे तो हम ये मान लें रिटायरमेंट एज हो जाएगी ऑन एन एवरेज 65. तो आपके पास कितने साल बचे रिटायरमेंट होने के लिए? 65 माइनस 22, कितने इयर्स हो गए? 43 इयर्स. 43. लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारे यहाँ जो एवरेज एज थी वो 32 इयर्स थी, 32-33 इयर्स. वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट. 32 से 33 साल हमारे यहाँ औसत आयु थी. ऐसा नहीं है हिंदुस्तान ने आजादी के बाद तरक्की नहीं करी. हिंदुस्तान ने आजादी के बाद बहुत तरक्की की. आज जो हमारे देश में 67-68 इयर्स एवरेज एज है, 68, वो ओवरनाइट नहीं हुई है. इंडिया हैज वर्कड हार्ड, इंडिया हैज डेवलप्ड. मेडिकल साइंसेज ने तरक्की की है, सब कुछ ने तरक्की की है. तो अगर यही रेट रहा, जो 32 वर्ष से 68 हो गया, अगर यही रेट रहा एवरेज एज बढ़ने का, तो जब तक आप रिटायर होंगे आपकी एवरेज एज हो जाएगी 85 इयर्स. कितनी हो जाएगी बॉस? 85 इयर्स. अब आपको पोस्ट रिटायरमेंट कितने साल जिंदा रहना है? 20 साल. ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि आप
जी सर। आपके एक्सपेंसेस 75% रहे। भाई बच्चे की शादी वादी कर दी, उधर बीमारी मारी के दवाइयों वाइयों के बढ़ गए, तो आपके एक्सपेंसेस जो है, देखिए मैं बहुत मॉडेस्ट एग्जांपल लेके चला हूँ, 20,000 रुपए महीने, एंड दिस इज फॉर दी वर्किंग क्लास। अभी जब हम अपने मिडिल एजेड 40-45 वालों की बात आएगी तो अतुल सर अभी वो भी बताएंगे कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये मान लें 75% हमारे एक्सपेंसेस रह जाए। गॉट इट? अब 75% का मतलब है हमारे पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, है ना, 14th कॉलम में देखिए, वैल्यू ऑफ मंथली एक्सपेंसेस पोस्ट रिटायरमेंट, दैट विल बी 15,000। बट आटा उतने भाव तो रहेगा नहीं, पेट्रोल उतने भाव तो रहेगा नहीं, चीनी उतने भाव तो रहेगी नहीं, है ना। तो इन्फ्लेशन मान लें अगर हम, देखिए ये फिगर कैसे बदलती है, 6%, तो मालूम है आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 48,107 रुपीज। गॉट इट? और इसके लिए बॉस मुझे कितना पैसा चाहिए? अगर मैं कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूं जहां से पोस्ट टैक्स मेरा रिटर्न 7% आ जाए, तो जिस दिन मैं रिटायर हूं उस दिन मेरे पास होने चाहिए 1,05,00,000 रुपए। सर ये कोई सोचता नहीं है आज के डेट में। मैं इसीलिए तो सोचवा रहा हूं सर। हमने भी नहीं सोचा था, प्रॉब्लम तो ये भी है। सर अभी आपका वाला लिख देता हूँ, रुक जाओ अभी इसको। अच्छा अब आप एक बहुत सर अभी बच्चों की बात करते हैं, अभी बच्चों की बात करते हैं। नहीं वो ज्यादा बेटर रहेगा। You were saying that faculty members are also there. Yeah, faculty members are also there. अगर सर मैं And they are सारे also देश keen को, enough क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम रह गया है। कोई बात नहीं, रिटायरमेंट एज सामने आ रही है। उसका भी इंतजाम है। अगर आप ये मान लीजिए, ये तो सर बच्चों के लिए जो 22 साल के हैं। सर एक बात और कहना चाहूंगा, पोस्ट कोविड मालूम ही नहीं जॉब्स का क्या सिनेरियो रहेगा, इनकम का क्या सिनेरियो रहेगा, और उसके बाद हम कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये खर्चे आप जो दिखा रहे हो उससे तो टेंशन बढ़ रही है। नहीं सर, अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम क्या, हम उसका प्रयास ही नहीं करेंगे ना। नहीं प्रयास नहीं करेंगे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको देख करके तो बीपी भी शूट कर जाएगा। नहीं अगर मैं अभी, अच्छा चलो थोड़ा सा और बढ़ा लो, अगर करंट बीपी नहीं बढ़ाना सर, करंट कॉर्पस बढ़ाना है। तो सर टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया रहे, हो जाएगा। करंट एज 45 कर दूं और इस करंट एक्सपेंडिचर को मैं 35,000 कर दूं सर, which is again modest. Sir, this figure will lead to 84,187 and this will be around 1.83 crores, around 2 crores. You are very much right, sir. ये आएगा ही आएगा, 100% इतना आएगा। बट कैसे इकट्ठा करेंगे? जीना थोड़ी छोड़ देंगे, करेंगे इकट्ठा, अभी करते, अभी विल डू इट। चलिए, तो अब सर का सवाल कि साहब ये आएंगे कैसे, है ना। पहले हम देखें, so this is, you need around 105 crores. Youngsters who are participating, you need around 105 crores, 1.05 1.045 crores. Now, how do we collect this? This is again a very big challenge. And I tell you, my dear friends, it is not at all a very big or hilarious task. It is a very simple task. And before we go over to that collection thing, for this, इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और उस फाइनेंशियल प्लानिंग को हम कोई बहुत ज्यादा कठिन शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति न कि मार्शल ने ये कहा था और स्मिथ ने ये कहा था और उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, उन सब बातों में हम ना, एक सिंपल सी डेफिनेशन हम ले लें। Financial planning is the process of meeting one's life goals
through the proper management of personal finance. सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात ये समझ लें कि ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये डायनामिक प्रोसेस है। इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? इसके थ्रू अपनी लाइफ गोल्स को अचीव करना। वो हम करेंगे कैसे? अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर। और पर्सनल फाइनेंसेस क्या है हमारे? हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, हम कितना पैसा बचा रहे हैं, हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम पैसा लगाएंगे, कहीं भी पैसा लगाएंगे तो हमें इन दो शब्दों के बीच में ना बड़ा भारी कोरिलेशन है। और हमारी जो किताबें हैं उनके बीच में भी, उनके अंदर भी कुछ बातें जो हैं वो हमें पगभ्रमित करती हैं, हमें डिविएट करती हैं। अगर आप जनरली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न? Suddenly an answer will come. Oh yes, sir. Higher the risk, higher the return. Then I put the question, if higher the risk, higher the return, तो फिर एक काम करते हैं, we start gambling. भाई सबसे ज्यादा रिस्क काय में है? गैम्बलिंग में। तो लेट्स कम एंड स्टार्ट गैम्बलिंग। कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, बोले हाईएस्ट रिस्क ले रहे हैं। बोले क्यों? वो सर आए थे, वो बता गए थे हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिटर्न। ऐसा कहीं होता है क्या? इस फिलॉसफी को चेंज कर दो। हाई रिस्क हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न, हाई रिस्क हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न, हाई रिस्क डज नॉट गारंटी यू हाई रिटर्न। हाई रिस्क कभी भी आपको हाई रिटर्न की गारंटी नहीं देता है, संभावना देता है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो जाए। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। स्टॉक मार्केट की लोग बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं आता है, अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ने नहीं आते, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रीड करना नहीं आता है, तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, आप स्टॉक मार्केट की तरफ पैर करके भी मत सोइएगा। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस टू गैम्बल। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस फॉर स्पेकुलेशन। Rightly said, sir. Stock market is a place for investment, and investment in stock market can only be done by the professionals, not by a layman. टिप आती हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं SMS में, 50,000 रुपए लगाइए, 5 लाख कमाइए, फोन आ जाते हैं। मैंने कहा मैडम आप ही कमा लो। हम तो 5,000 में भी खुश हैं। स्टॉक मार्केट की तरफ पैर भी मत करना अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज नहीं है। A person who has been associated with the market regulator, with the people who are developing the market is saying that please don't put your money into the stock market until and unless you know how does it function. अब दूसरी बात ध्यान रखना, एक तो हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिटर्न की गारंटी नहीं देगा। दूसरी बात जो आप ध्यान में रखना, जीरो रिस्क नाम की चिड़िया इस दुनिया में नहीं। मेरे वॉलेट में जो पैसा पड़ा, मेरे पर्स में जो पैसा पड़ा है, क्या वो जीरो रिस्क? मेरे घर के डिब्बे में जो पैसा पड़ा है, क्या जीरो रिस्क? अभी जब सेविंग्स बैंक अकाउंट, अतुल सर आपको याद होगा जब हम पहले वर्कशॉप करते थे प्री कोविड, तो मैं लोगों से पूछता था क्या बैंक में पड़ा आपका पैसा सेफ है? तो कहते थे हाँ। तो जब मैं उन्हें बताता था कि आपकी जो गारंटी है वो DICGC की 1 लाख रुपए पर बैंक है, तो सबके मुंह खुले रह जाते थे। सही बात है सर।
कि सर बैंक में पैसा पड़ा हमारा सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है, बैंक व्यापार कर रहा है भाई। बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है? आप तो सब एमबीए के स्टूडेंट्स हो, आप लोग सब कुछ टेक्निकल स्टूडेंट्स भी हो। बैंक का काम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग ऑफ मनी। सेविंग में ज्यादा छोड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, बेसिक अगर हम बात करें सर, सेविंग में क्या, एफडी में भी गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही मैं बात कर आपको बताता हूं, बेसिक फंक्शनल जो लॉ का है वो ये है कि अभी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसे 5 लाख रुपए पर बैंक किया। पहली बात समझ लीजिए, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं कि XYZ बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे वो एफडी अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट, चाहे वो आपका आरडी अकाउंट हो। बहुत गौर से सुनना बच्चों, XYZ बैंक में, और सपोज उस XYZ बैंक की, आपके आगरा का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 ब्रांचेस हैं। एक न्यू आगरा ब्रांच है, एक दयालबाग ब्रांच है, एक कमला नगर ब्रांच। आपके तीनों ब्रांचेस में एक दयालबाग ब्रांच में 6 लाख रुपया पड़ा है, न्यू आगरा ब्रांच में 4 लाख रुपया पड़ा है, और कमला नगर ब्रांच में आपका 3 लाख रुपया। तो सब 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया? 13 लाख रुपया मेरा XYZ बैंक में पड़ा हुआ। गॉड फॉरबिडन, भगवान ना करे, वो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है। अगर बैंक में आग लग जाती है, बैंक में चोरी हो जाती है, बैंक में डकैती हो जाती है, आपका पैसा 100% सेफ है। लेकिन अगर बैंक बिजनेस में फेल हो जाता है, बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, यस बैंक को मत भूलो। अभी सही कहा है, लेटेस्ट यस हो बैंक चुका है, बहुत करंट एग्जांपल है, यस बैंक। यस बैंक को मत भूलो। अगर वो XYZ बैंक फेल हो जाता है तो आरबीआई आपको गारंटी नहीं देती है आपके पैसे वापसी की। आरबीआई हर अकाउंट की इंश्योरेंस कराती है DICGC के साथ, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उस इंश्योरेंस क्लेम के तहत जो मैक्सिमम अमाउंट पेएबल है वो अभी कुछ दिन पहले तक 1 लाख रुपीज था, नाउ इट इज 5 लाख रुपीज। Before the fiasco of Yes Bank, it was 1 lakh rupees and now it is 5 lakh. And mind it, it is not 5 lakh per branch. It is 5 lakh per bank. तो ये मत सोचिएगा कि 5 लाख दयालबाग के मिलेंगे, 4 लाख यहाँ के मिल जाएंगे, 3 लाख वहां के मिल जाएंगे, तो मेरा नुकसान क्या हुआ? मेरा तो 1 लाख हुआ। नहीं बॉस, 13 लाख में से कितने मिलेंगे? 5 लाख मिलेंगे। Are you getting it? या यू आर राइट। तो बैंक, घर में जेब में पड़ा पैसा सेफ नहीं है, वॉलेट में पैसा पड़ा सेफ नहीं है, बैंक में पड़ा पैसा सेफ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जीरो रिस्क नाम की कोई चिड़िया नहीं। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम अपने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को 3 पार्ट में बांटते हैं। वी डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स: लो रिस्क, मीडियम रिस्क and high risk. You can just go through them. Low risk, when we are talking about cash in hand, bank deposits. But Yes Bank fiasco also tells us one thing, that government, none of the government will easily let any bank fail, whether it is a private sector bank or a public sector bank. So bank deposits are much safer. Medium risk, debentures, that is the loan taken by the company, fixed income mutual funds. High risk, we talk about equity shares and growth mutual funds. Basically speaking, mutual fund जो है ना, that is a very good source for a non-professional who is not very well versed with the market. इसकी थोड़ा सा बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे ऑपरेट करते हैं। देखिए, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि सपोज आपके घर में एक गाड़ी खड़ी है,
और आपको दिल्ली जाना है, बहुत जरूरी काम से जाना, आपकी इंटरव्यू है और आपको जाना ही। अनफॉर्चुनेटली आपको वो गाड़ी चलानी नहीं आती, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव दैट। तो क्या आप ये रिस्क लोगे? क्या वो आप गाड़ी चला के जाओगे? मुझे नहीं लगता कोई भी सेंसेबल आदमी वो गाड़ी चला के जाए। आप क्या करोगे? यूल टेक अ ड्राइवर, यूल टेक अ टैक्सी, यूल टेक अ ट्रेन, बट आपको अपनी गाड़ी खुद चला के नहीं जाओ। सेम केस है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊं। म्यूचुअल फंड्स में एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वो एक ट्रस्ट अपॉइंट करती है और ट्रस्ट बनाता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, यूनिट्स खरीदते हो, तो आपका पैसा उन प्रोफेशनल्स के हाथ में जाता है और वो आपके पैसे को कहाँ लगाते हैं? मार्केट में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स, एक ग्रोथ म्यूचुअल फंड और एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स जो आपके पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, डेट फंडिंग में लगाते हैं। ग्रोथ म्यूचुअल फंड जो आपके पूरे पैसे को काय में लगाते हैं? इक्विटीज में लगाते हैं, इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं। और बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स कुछ पैसा आपका ग्रोथ में लगाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, और कुछ पैसा आपका डेप्ट में। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं व्हाट इज एसआईपी। देखिए, एसआईपी इज द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। एसआईपी इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे हम बैंक में कोई आरडी खोलते हैं 500 रुपए महीने की, 1000 रुपए महीने की, इसी तरीके से आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए, 10,000। एसआईपी का एडवांटेज क्या होता है कि अमाउंट तो आपका सेम जा रहा है, फिक्स्ड जा रहा है। जब मार्केट ऊपर होता है तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट कम हो जाती है। जैसे आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उस वक्त 1000 रुपए की एक यूनिट थी, तो उस महीने आपको कितने मिले? 10 यूनिट मिले। जब मार्केट नीचे गया, 500 रुपए यूनिट हो गई, शेयर मार्केट नीचे गया, तो आपको कितने यूनिट मिल जाएंगे? 20 यूनिट। कुल मिला के मार्केट का अप्स एंड डाउन्स एवरेज होता है। ऑन एन एवरेज में आपसे कोई नहीं कह रहा कि 15%, 16%, 17%, हालांकि देते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स रिटर्न, ऐसा नहीं है, दिए नहीं है, देते भी हैं, दे भी रहे हैं। बट आप कुछ नहीं मानोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बुरी सी बुरी परिस्थिति में आपके पास 9, 8, 9, 10% रिटर्न आ ही जाएगा, विच इज इनफ टू बीट द इन्फ्लेशन। तो एक कॉमन आदमी के लिए द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, if at all he wants to participate, and he should participate in the market, is through the mutual funds. अब एक और जर्नल क्वेश्चन आता है, I'll come back to these two legends a moment later. हमसे लोग जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप ये बताओ कि मैं कितना पैसा रिस्की इंस्ट्रूमेंट में लगाऊं और कितना पैसा मैं अपना एफडी में लगाऊं या आरडी में लगाऊं। तो ये सिंपल सा बहुत सिंपल सी प्रिंसिपल है, which is 100th minus your age. 100 minus your age means अगर आज आपकी yes, you're right. The person on left hand of your screen is Albert Einstein, and right hand of your screen is Mr. Warren Buffett. I think very few people need the introduction of the person on your
the person on the left hand of your screen, that is Albert Einstein. Warren Buffett happens to be the most successful investor of the world. मैं ये दोनों की पिक्चर आपको क्यों दिखा रहा हूं? दोनों की उम्र में भी बहुत फर्क है। एल्बर्ट आइंस्टाइन मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को साइंस वालों को ज्यादा मालूम होगा, शायद 1800 में थे। 1800 कब थे अतुल सर? मुझे 1800 के सेंचुरी में होंगे। वॉरेन बफेट इज स्टिल अलाइव। वॉरेन बफेट इज स्टिल अलाइव। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था दुनिया में 7 अजूबे नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा था दुनिया में 8 अजूबे हैं, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और कभी आप गूगल करिएगा तो आपको इसके फैक्ट्स मिल जाएंगे। Einstein said that there are 8 wonders in the world. There are not 7 wonders. There are 8 wonders. When people asked him, what is the 8th wonder? He said the 8th wonder is power of compounding. The 8th wonder is compound interest. And I think the person on the right hand side of your screen, Mr. Warren Buffett, was the best person to learn this lesson from Albert Einstein. Warren Buffett made his first investment at the age of 11 years. Yes, 11. You people are 22. That means he was half your age. तेरह साल के जब वो हुए, जब वो 13 साल के हुए, तो अब मुझे नहीं मालूम अमेरिकन इनकम टैक्स कोड क्या कहता है, बट उनके फादर को उनका इनकम टैक्स भरना पड़ा। Within 2 years उन्होंने इतना वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया था। एंड वॉरेन बुफे from last 15-20 years, I'm not quoting because I've not done R&D on that. From last 15-20 years, he is amongst the top 10 richest people of the world continuously. 10 भी ज्यादा कह रहा हूँ, 5 में ही होंगे। कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, कभी फिफ्थ, continuously from last 20 years. Warren Buffett, if I'm not wrong, was born in the year 1930. तो आज बुफे सर की जो उम्र है वो 90 साल है। 90 साल का मतलब ये हो गया कि अगर इसमें 90 साल में से मैं 20 साल माइनस कर दूं, तो वॉरेन बुफे अराउंड 68-70 इयर्स के होंगे जब वो पहली बार वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आए होंगे, जब उनका नाम आया होगा फोर्ब्स लिस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कितने साल लग गए? 11 साल, 68, यानी he took almost 56-57 years to become the richest person of the world. He owns a company which is known as Berkshire Hathaway. I'm not going on to that. So what is that power of compounding? What is the actual power of compounding? We learn today. And again I'm saying, हमें हमारे पास ज्यादा पैसा होना आवश्यक नहीं है, हमारे अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना आवश्यक है। वो कैसे आवश्यक है, that I'll tell you today, and now I'll take you towards earning how to earn that money. Before we go over to that exercise, एक simple सा example है, आप लोग सब पढ़ लीजिए। I hope the screen is there, Arif sir. Yes, it is Just there. please go through this example. Please go through this example. ट्विन ब्रदर्स हैं अनिल और सुनील।
अनिल ने 25 साल की उम्र से सेव करना शुरू किया और कब तक किया? केवल 10 साल, till he attained the age of 35 years. जुड़वा भाई है जो उसका दूसरा भाई था, उसने सेम काम शुरू किया 35 इयर्स की एज में, एंड ही कंटिन्यूड टिल द एज ऑफ 60. उसने कितने साल किया? 25 इयर्स, फ्रॉम 35 to 60. दोनों ने कोई बहुत बड़ी रकम नहीं बचाई थी, 50,000 रुपए साल. हाउ मच? 50,000 rupees per year, not a month. यानी approximately 4,000 rupees a month. ठीक? And they kept on putting that money into SIP or whatever you call it. And they earned only 10% on their investment. ठीक है? अनिल ने कितने रुपए जमा करे? 25 to 35, 10 साल में 50,000 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपीस. सुनील ने कितने जमा करे? 12.5 lakhs. 25 years, 50,000 के हिसाब से 12.5 lakhs. दोनों जुड़वा भाई हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं, 60 इयर्स के सेम एज पे होंगे, दोनों सेम डे रिटायर होंगे. किस पे कितने पैसे होंगे? एक ने 5 लाख रुपए बचाए और एक ने 12.5 लाख बचाए. देखते हैं. जिसने 5 लाख रुपए बचाए थे उस पे कितने पैसे हैं? 86 lakhs. और जिसने 12.5 लाख बचाए थे ना, उस पर कुल कितने हैं? 49 lakhs. इस 8वें अजूबे की बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी. इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात. और अनिल देखिए, अनिल वॉज नॉट ओनली फिनेंशियली इंटेलिजेंट, अनिल फैमिली वाइज भी इंटेलिजेंट था. पहले थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं ऐसा हुआ क्यों. आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या पागल करने की बात. ऐसा इसलिए हुआ कि अनिल की जो पहली इन्वेस्टमेंट थी एट द एज ऑफ 25 इयर्स, उसने इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया फॉर 35 इयर्स. और सुनील की जो पहली इन्वेस्टमेंट थी उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया ओनली फॉर 25 इयर्स. और हर इन्वेस्टमेंट पे ये 10 साल का अंतर पैदा होता चला. That is why Anil got 56 lakhs and Sunil got 49 lakhs. The people who are expert at Excel or even know the basics of Excel can work it out. कंपाउंड वैल्यू निकाल लीजिए, पता चल जाए. अनिल यहाँ पे केवल फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं था, अनिल यहाँ फैमिली वाइज भी इंटेलिजेंट था. 25 to 35 आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती है. शादी वादी होती है, बढ़नी शुरू होती है, बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, शुरुआत होती है. लेकिन जब आप 35 साल की आयु पे हो जाते हैं, when once you attain the age of 35 years, your family responsibilities start increasing. अनिल तब तक सेव करके छोड़ चुका था अपने फ्यूचर. सुनील ने तब से शुरू किया, इसलिए सुनील को हार्डशिप भी ज्यादा बेयर करनी पड़ी, क्योंकि जब सबसे प्रोडक्टिव टाइम, जब से ज्यादा खर्चे का टाइम था, तभी सेविंग्स करनी पड़ी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, तभी बच्चे पालने पड़े, तभी पैसा बचाना पड़ा. तो भी एंड रिजल्ट क्या हुआ? लगभग आधे पैसे कटे. ज्यादा जमा किए, पैसे आधे कटे. सारी हार्डशिप. ये मैंने आपको कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया, तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, 50,000 रुपए साल का. एक और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. आई होप
Sir, did you stop the screen share? आरिफ सर क्या कह रहे हैं? Sir, did you stop the screen share? Okay. सर आपने स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया है क्या? हाँ, just a moment. I'm going to the exercise. हाँ, not a problem, not a problem. You can Okay. take your time. There's no problem. I'm just going to the exercise. I will request everyone to please hold on. I'm not able to open the Excel. Maybe it is giving me some problem. So Just minimize quietly that Excel file. Minimize that Excel file, and go I'm from reopening it the again. shared file. Okay. So I'll. कोविड ने सब सिखा दिया सर. यही बात होती है सर, हर चीज. Screen is visible. Yeah, it is visible, sir. चलिए एक बहुत छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. वो हमने साल का एक्सरसाइज था. एक SIP का एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सिंपल सा. आप लोगों के लेवल पे. Sir, one thing I just want to share over here, that power of compounding, no doubt about it, it is the magic. Right. But the point is this, that when you are sharing about the mutual funds, it happens this way that mutual funds basically, they have also gone down during this particular session. I'll sir mark it. I'll just get back to you. I'll come back to that, sir. So what I just want to share over here is this, that mutual fund is no doubt a very good option, but we should keep on churning. We should actually take out our stocks and keep it in a liquid stock, and then once again we can keep it in the equity stock. I'll come back to the all the three aspects which you're talking about. I'll talk about safety. I'll talk about liquidity. I'll talk about returns. Fine, sir. I'll talk about all these three things. Right? Absolutely fine. One example, I think the screen is visible to all now. One example we did for what do you call it, yearly returns. अब एक छोटा सा SIP खोल लेते हैं या RD खोल लेते हैं बैंक में, है? और सपोज 4,000 ज्यादा है तो यू मेक इट 2,000. बच्चों के लेवल पे 2,000 कर लेते हैं. मोबाइल में सब कोविड से तो पैसे बहुत बच जाएंगे सर इन लोगों के पास. बाइक वाइक का घूमना घामना, है ना. हाँ, थोड़ा इंटरनेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बाकी तो सब बच गया. और फिर पार्टी शार्टी के खर्चे ये सब बच गए. तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मैंने 4,000 रुपया महीना जमा किया और कितने साल हो गए, सपोज 20 साल के हैं आप, 40 साल आपके पास हैं, तो यू हैव 480 months in hand. How many months you have in hand? 480 months. छोटा टाइम नहीं होता सर. अगर आज कोई 20 साल का इंसान है और वो 60 साल में रिटायर होना चाहता है, तो उसके पास 480 महीने हैं. और मैं मान लूं पोस्ट टैक्स 7% रिटर्न में आप पैसा डालते. मैं नहीं बात कर रहा 10%, 15%, 16%. मैं पोस्ट टैक्स केवल 7% की बात कर रहा हूं. अगर आप 7% में पैसा डालते हैं तो आपने 480 महीने में टोटल रुपए कितने बचाए? 19,20,000. 4,000 रुपया महीना इंटू 480 मंथ्स कितने हुए? 19,20,000.
लेकिन सर आप जब इसकी मेच्योरिटी देखोगे ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जब आप इसकी मेच्योरिटी देखोगे तो आपको लगेगा जिंदगी हमेशा लंबी ही जीनी चाहिए, हमें कभी भी जिंदगी छोटी नहीं जीनी चाहिए। वाई? लेट मी टेल यू। The total amount इतना हो जाएगा बॉस। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये तो सर उतना ही हो गया, 1,05,000, 1,05,00,000। वो बाय डिफॉल्ट उतना आ गया ये, जितना हमें चाहिए था। जितना हमें चाहिए था बाय डिफॉल्ट उतना आ गया ये। अब आप बताओ, क्या जीवन में पैसे इकट्ठा करना बहुत बड़ा काम है यार? कोई बड़ा काम नहीं है। आप देखिए, बेसिक बात यह है कि हम 99.9% लोग गलती क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं बाद में बचाते हैं। सही बात। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो आप पहले 5 रुपए बचाओ। मैं नहीं कह रहा 50 रुपए बचाओ, 10 रुपए बचाओ, 20, आप पहले 5 रुपए बचाओ, फिर 95 खर्च करो। सही बात है सर। कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट माइंडेड, सर मैं एक बात बता रहा हूँ, 7% रिटर्न की, अभी अगर इसको मैं 8%, 9% कर दूं, या नॉर्मल रिटर्न, एवरेज रिटर्न 9% कर दूं, तो थिंग्स आर इंटायरली डिफरेंट। सर अभी सिचुएशन अलग है, लेकिन जब इकोनॉमी स्टेबल रहती है और एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, तो नॉर्मली रिटर्न्स आर कमिंग बिटवीन 8 to 10%। वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग यू बिटवीन से 12 to 15%। मैं तो इसलिए 7% लेके चला हूँ कोविड टाइम से सर। ये अगर मैं इसको 9% भी कर दूंगा ना, तो आप ये अमाउंट देखिएगा कितना बदलता है। लुक एट द अमाउंट। Obviously the amount will go up. Amount will go up massively. It has gone up by 82 lakhs. 4,000 is a meager amount. One can say very easily. There's no problem. इतना हम लोग अपने, मेरा ख्याल, अब पोस्ट कोविड तो बचा ही सकते हैं। दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कोविड हैज गिवन अस। A power of compounding is really good, no doubt about it. But one has to understand. हाँ, सवाल क्या है, ये सर कोई रिसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट फिनोमेना आज का फिनोमेना नहीं है। जितना पुराना बैंकिंग सिस्टम है, उतना ही पुराना कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम है। Obviously. बट हम में से कितने लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया? नहीं किया। सही बात है। और हम लंबा जीवन जीने से डरने लगा। आज का यूथ, जिसके ऊपर कंट्री की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहता है साहब जल्दी मरना चाहता। अरे भाई, जब तुम ये कहते हो कि मैं देर से नहीं मरना चाहता, तो एट द सेम टाइम यू सेइंग मैं जल्दी मरना चाहता हूँ। Yes, you are right. Glass is half full, glass is half empty. So once you want to, you say that I don't want to live for a longer period of time, that means you want to die early. Why? दुनिया में आए, मजे लो बेटा जिंदगी के। और मजे लेने के लिए हमें कोई बहुत संघर्ष थोड़ी करना है। मैंने तो आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई। तो लाइफ इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। 2-4 अच्छे दोस्त रखो जिनसे सब कुछ शेयर कर सको। Yesterday's incident, accident, what you call it, was shocking. Yeah, it is shocking. God has what given was the you reason? life. Nobody knows. Enjoy it. बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो जीवन में। जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग की आवश्यकता। The only thing what is required is bit of planning. Are you getting it? Now, very quickly, I think I've taken a lot of time. और मेरे को सर की बात पे भी आना है ना। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो सर वी शुड कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड, माय डियर फ्रेंड, वी शुड कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड, दैट इज ऑफ सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। आप कहीं भी पैसा लगाओ,
आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिक्विड। म्यूचुअल फंड्स आर वेरी मच लिक्विड। आप T+2 डेज में चाहे मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड हो, आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। अगर कोई कहता है म्यूचुअल फंड में से आप पैसा नहीं निकाल सकते, जैसे आप अपनी FD में से पैसा निकाल सकते हो, जैसे आप RD में से पैसा निकाल सकते हो, वैसे आप म्यूचुअल फंड में। जो रिटर्न की बात, देखिए जब टफ टाइम्स होंगे, तो मैंने इसलिए SIP बोला, जब टफ टाइम्स होंगे रिटर्न कम होगा, जब इजी टाइम्स होंगे तब रिटर्न ज्यादा। 100 साल बाद अगर ऐसा एक पैंडेमिक आता है, तो उस पैंडेमिक से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वी शुड फाइट इट, वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम इट। 85% लोगों को बिना सिम्टम के हो रहा है ये। कितनों को आप लोगों में से, हम लोगों में से हो चुका होगा, पता ही नहीं होगा। तो इससे डरो मत, प्रिकॉशंस लो, प्रिवेंशंस रखो, and that you go ahead. Safety, your investment should be safe, your investment should be liquid, and it should generate returns to you. So keep this principle of SLR in mind. Ponzi schemes, फर्जी स्कीमों से बच के रहो, ये बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। पता कैसे लगाएं साहब Ponzi स्कीम? Ponzi बेसिकली फर्जी स्कीम को कहते हैं, हिंदी में Ponzi फर्जी को कहते हैं। फर्जी बेसिकली, दिस Ponzi वर्ड हैज बीन नेम्ड आफ्टर चार्ल्स Ponzi। तो ये Ponzi स्कीम्स क्या होती हैं? ये फर्जी स्कीम्स होती हैं। इनका पता लगाने के लिए कोई लीगल और इलीगल एस्पेक्ट की आवश्यकता नहीं है। रूल ऑफ 72 लगा लीजिए आप। ये पैरासिटामोल है, रूल ऑफ 72, बुखार के लिए। बोले मैं आपके पैसे 3 साल में दुगने कर दूंगा, तो तुरंत 72 डिवाइडेड बाय 3 कितने हो गए? 24%। ऐसा कभी होता है क्या? तुरंत समझ जाइएगा ये स्कीम फर्जी है। 72 से अगर टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे तो रिटर्न मिल जाएगा। 72 से अगर रिटर्न को डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड। ऑन एन एवरेज कोई भी स्कीम जो आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉमिस कर लेगी, समझ जाइएगा वो फर्जी। Quickly going over to, because we started with LOC, lessons, opportunities and challenges. Stay healthy, first lesson. Save, invest, keep 6 months money into savings account. Each one of you should have health insurance. My dear friends, each one of you should have health insurance. Each one of you should have life insurance. Earlier the better. लाइफ इंश्योरेंस जितने जल्दी लेंगे उतना प्रीमियम कम हो। कोई होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, दिस पॉलिसी, दैट पॉलिसी मत लो। लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू योर फैमिली, नॉट टू यू। एक काम लिख लो, टर्म इंश्योरेंस। बहुत सस्ता आता है, पॉलिसी बाजार पे देखते होंगे, इतने रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, वही है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लो, कोई होल लाइफ पॉलिसी एजेंट आसानी से बेचेगा नहीं तुमको। उसको बोलो नहीं, हमको तो टर्म इंश्योरेंस चाहिए, कम से कम प्रीमियम, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदा जाता। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में की जाती है, इन्वेस्टमेंट FDs में की जाती है, इन्वेस्टमेंट RDs में की जाती है, इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में नहीं की जाती। इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट सेफ रखें, विल बना के रखें, सारे नॉमिनेशंस करके रखें हर एक इन्वेस्टमेंट। All the nominations should be there, and there should be one document which states what you have and what you owe. These are the lessons which COVID has taught us.
Earlier the better. What are the opportunities? We can take advantage. We can become a global production hub. हमें मार्केट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है. वी आर ऑलरेडी अ कस्टमर बेस ऑफ 135 करोड़. न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप देखते होंगे. मास्क बनाने लगे लोग, सैनिटाइजर्स बनाने लगे. कहते हैं ना, ऊपर वाला अगर एक दरवाजा बंद करता है, दूसरा दरवाजा खोल देता है. चैलेंजेस, यस, टफ चैलेंजेस आर देयर. बीमारी को झेलना है, इसके साथ जीना है. अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर. इंटरनेशनल रिलेशंस विल बी एट स्ट्रेस. रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम मैनुअल इंटरैक्शन नहीं करेंगे तो हम डिजिटल इंटरैक्शन करेंगे. और जब हम डिजिटल इंटरैक्शन करेंगे तो साइबर क्राइम विल इंक्रीज. बहुत सफल अपना सेफ्टी के साथ अपने एटीएम पिन्स, अपने पासवर्ड्स. बैंक कोई नहीं पूछता आपसे कि आपका पिन क्या है, आपका कार्ड नंबर. बैंक क्यों पूछेगा? बैंक ने तो आपको कार्ड दिया है. बैंक के पास क्या आपका कार्ड नंबर नहीं है? तो बैंक आपसे पूछेगा आपका कार्ड नंबर क्या है. ये सब फर्जी है. घर में बड़े बूढ़ों को भी समझाइए कि आपको अपना कार्ड नंबर नहीं देना है किसी को. आपको अपना टी पिन शेयर नहीं करना है. आपको अपना पिन शेयर नहीं करना है. और सबसे बड़ी बात, जब अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा तो देयर आर चांसेस ऑफ सोशल अनरेस्ट. जब रोजगार नहीं होगा तो लोग, हो सकता है, चोरी चकारी पे उतरे. तो you have to keep yourself safe and secure from that point of view also. Thank you very much. I think I extended the session. Over to you, Arif sir, for the queries. I'll be answering the queries and then coming back. Over to you, Arif sir. Thank you so much, sir. Now, if you have any question, you can raise your hand. We will unmute you and you can ask from the expert. Sir, can you increase the volume because I'm not able to. Volume of what, sir? मेरे पास जो ऑडियो आ रहा है वो थोड़ा हल्का है. Okay, okay. आपकी आवाज I try to speak loud. So you can start the query. So it is humble request to everyone. If you have any query and if you want to ask any question to the expert, you can raise your hand. We will unmute you and then you can ask questions. I will request all the participants to fill up the feedback form. I have shared the link of the feedback form in the chat box. If you want that we should give you the e-certificate, so please fill up this particular Google form so that we can give you the e-certificate. And once again, I will request all the participants that if you have got any queries related to the session, you can post it on the chat box. Sir, I can want see. To raise the hand. Sir, I can see certain queries on the group chat. Yeah. So you can definitely answer those queries, sir, if you can see them. Right. Because otherwise अच्छा नहीं होगा ना बच्चे without. नहीं, please do that. Please तो बेटा जो दिखेंगी वो कर दूंगा. Else I will request the participants if you can raise one again and again. He says personal finance management is an art if it is too complex. So I have shown you it is not at all complex. It is very simple, right? It is too simple. कितना simple मैंने आपको दो example दिए. बिल्कुल भी complex नहीं है पैसा इकट्ठा करना है. ठीक है? And what is the actual meaning, Mr. Nishant Saxena is asking, what is the actual meaning of being financially literate? How can one be financially sound? Is the true meaning of being financially stable
is different to different people. Is it relative or totally absolute? It is relative as well as totally absolute. It is absolute when we are talking about basic necessities. But when I compare myself to Mukesh Ambani, it becomes relative. Right? So otherwise, अगर हम बेसिक ब्रेड एंड बटर की बात करेंगे तो ये एब्सोल्यूट है, और जब मैं और मुकेश में आपस में कंपैरिजन करता हूं तो मुझे थोड़ा रिलेटिव लगता है, राइट? देन yes, retirement planning is crucial to everyone. एक्चुअली में फीडबैक करने का परमिशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है. Then what are different mutual fund institution which gives better return with low risk? See, there is no criteria. This you will have to select. Mutual funds also don't come with zero risk. आप उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, हर म्यूचुअल फंड का. मैं नहीं बता सकता आपको कि आप कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदें, कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड नहीं खरीदें. आई एम अ न्यूट्रल मैन. तो आपको खुद, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग में हो, तो आप उसका पास्ट रिकॉर्ड आराम से ये देखो. ये सब सवाल होते थे बेटा जब इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इतना आसान नहीं था. आज की डेट में आप एक क्वेरी गूगल पे डालते हो, 500 पेज खुल जाते हैं. आज है So